So let's start with firecracker veggies. तो firecracker veggies में हम बनाएंगे firecracker sauce. So it's a sweet and spicy sauce. So what are the ingredients that we are going to use to make the sauce sweet and spicy? The sauces that we use are sweet chili sauce, which you can see here, and sweet इससे हो गया. स्पाइसी के लिए हम यूज करते हैं श्रीराचा, और इसमें होती है oyster, and as you can read the label, it's vegetarian oyster, and if you are a non-vegetarian, you can go in for the regular oyster sauce. Then we have a light soya sauce. Now all these ingredients are easily available on our site neetamehta.com. Now बाकी ingredients जो इसके हैं मैं on कर देती हूँ गैस. We are doing the firecracker sauce first, in which I'm using tofu. If you want to use chicken, I'll tell you side by side how you have to do it. Okay, so this is tofu, and if you can't get good tofu, I would recommend the very cheap one which we get at the sabzi walas. This is Murugan's brand, or a firm, any good firm tofu you need, ये ले लीजिए आप. और अगर टोफू ना हो तो आप पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि होता तो पनीर ही है ये भी टोफू, पर ये सोया मिल्क का पनीर होता है और वो गाय के दूध का पनीर होता है. सो द टेस्ट आर वेरी सिमिलर, इतना फर्क नहीं पड़ता. So you could use the paneer or tofu. I'm using tofu, and I'm using this Murugan's brand of tofu, which I quite like. You get a vegetable tofu also if you get your hands on that. वो आप ले लीजिए, वेजिटेबल टोफू भी बहुत अच्छा होता है इनका. नाउ सबसे पहले टोफू के लिए क्या करना है, थोड़ा सा तेल गरम करेंगे हम. ओके, नाउ टोफू में मैं डालूंगी टोफू को पैन फ्राई करना है. मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, so that it gives a nice color, and I'm using Neeta Mehta Kashmiri red chili powder. And बहुत गरम नहीं करना तेल को, because if you heat the oil too much, then आपका जो कश्मीरी मिर्च पाउडर है वो जल जाता है. तो जैसे ही ये थोड़ा सा तेल गरम हुआ और मैंने इसमें ये डाल दिया टोफू. अच्छा, अब ये साथ साथ पैन फ्राई होगा. मैं थोड़ी इसकी आंच कम कर देती हूँ, सो दैट मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिखा सकूंगी. ओके, एक बार सब तरफ से इसको रोटेट कर देती हूँ. So as of now, it looks like this, and I'll be just making it a little golden brown. Okay, now what are the other vegetables that we are going to use in it? First of all, if you can see this, I have some red chilies fresh. Now if you don't get these red chilies fresh, by chance नहीं होती हैं, तो आप ड्राई रेड चिलीज को पानी में भिगो दो. गर्म पानी में नहीं भिगोना, ठंडे पानी में, रेगुलर टैप वाटर में. गर्म पानी में क्या होगा, वो सॉगी सी हो जाएंगी और क्रिस्प नहीं रहेंगी. तो गर्म पानी में मत भिगो, और रेगुलर पानी में भिगो के आप इसे थोड़ी देर फूलने दो और फिर उसे इस्तेमाल कर लो. लहसुन ज्यादा है, अदरक थोड़ी सी है, और ये लाल मिर्चें बारीक कटी हुई हैं. ओके, नाउ अब वेजिटेबल्स कौन से हैं इसके अंदर, अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं अनियंस है, which have been cut thickly into half rings. तो ये देखो प्याज को मैंने ऐसे काटा है, तो अगर सेपरेट करती हूँ तो ऐसे आ जाता है, मतलब हाफ करके फिर हाफ रिंग निकाल लेने हैं. रेड कैप्सिकम है, which has been shredded like this. Then I have mushrooms which have been cut into 4. Then I have these snow peas which are kept whole. Zucchini which is kept like this. This is yellow zucchini. I'll show you how to cut. Broccoli which has been lightly. Have these baby corns which have been cut in a slant. And besides this, I have some cherry tomatoes and spring onion greens which I'll add at the end. Now, अब हम आपको थोड़ा सा सभी का काटने का बता देते हैं.
how to cut a zucchini. Now just remove the center part of the zucchini. You know, you don't want to blanch the zucchini. Now if you don't remove this, then you will need to blanch it, because then it won't cook fast. So you need to remove this center core, बीज वाला हिस्सा. You can put this in your soups, you can put this in your salads, किसी भी चीजों में डाल सकते हैं. अच्छा, ये आपका टोफू भी होने वाला है. मैं अलट पलट रही हूँ इसको. zucchini को अब आपने ऐसे डायगनली काट लेना है. तो अब आपको ये ऐसे मिलेगा, ऐसे पीसेस मिलेंगे. This is how you cut your zucchini. We've already cut some. We don't need much. ये उठा लेते हैं. ये जो snow peas हैं, these can be kept whole or they can be cut into two like this if they are big. It's your wish. ऐसे भी काट सकते हैं. So we've cut them into this. Now the tofu has been done. I'll remove this. ये आपका टोफू हो गया है. अब हमने शुरू करना है इसको. इसी तेल में मैं डालूंगी ये तीनों चीजें एक साथ. लहसुन ज्यादा 2 चम्मच, अदरक थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची. और अगर फ्रेश नहीं है तो ड्राई को पानी में भिगोकर काट लीजिए. हमेशा द हार्डेस्ट वेजिटेबल्स गो फर्स्ट, या जिसमें पानी ज्यादा हो वो सब्जियां पहले हम डालते हैं. तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मशरूम्स. अब जो लोग चिकन खाते हैं वो मशरूम्स ना डालें, और मशरूम्स की जगह इसमें चिकन डालेंगे. पर कैसे डालेंगे? जो इसकी सॉस है जो मैं बनाऊंगी अभी, वो थोड़ी सी ज्यादा बनाएंगे और उस सॉस में चिकन को मैरिनेट करेंगे. और फिर इसके बाद मशरूम्स तो हमने मैरिनेट नहीं किए, बट चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है. तो चिकन को आप मैरिनेट करेंगे और ये मशरूम्स डालेंगे. अब मैंने डाले मशरूम्स, और मशरूम्स को मैं थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ. ओके. नाउ अब इसमें नेक्स्ट क्या जाएगा? अच्छा, चिकन का मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. अब चिकन को आपने क्या करना है? पहले तो 500 ग्राम चिकन ले लेना है, और मशरूम्स तो आपने कट करने ही करने हैं, और उसकी जगह सब्जियां भी इतनी थोड़ी डालोगे. अब इसमें से आपकी मर्जी है क्या सब्जी डालो. अगर आपको बेबी ये मिल जाती हैं स्नो पीस, जुकनी, तो ये डाल दें. अगर ये नहीं मिलती हैं तो आप ब्रोकली और बेबी कॉर्न डाल दें. मतलब थोड़ी कम कर दीजिए सब्जी. और इसमें प्याज और लाल शिमला मिर्च तो डालेंगे ही. बाकी सब्जियां आपकी चॉइस में से कुछ भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्जियां कम नहीं करेंगे तो वो सॉस के लिए जो टोटल मिक्सचर है वो थोड़ा कम हो जाए, सॉस कम पड़ जाएगी आपकी. मशरूम थोड़े से सॉटे हो गए. अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ रिंग. ये देखिए, आधा प्याज ऐसे हाफ रिंग्स में कटा हुआ है. इसको खोल देते हैं हम. और साथ में मैंने डाली इसमें लाल शिमला मिर्ची. अच्छा, ये आपने जो ब्रोकली है और बेबी कॉर्न है, अगर मैं इसे खाती हूँ तो ये थोड़े टेंडर हैं. ये कैसे ब्लांच करने हैं ये मैंने आपको लिखा हुआ है रेसिपी में, कि आपने पानी उबालना है. पानी उबाल कर और फिर आपने उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और सिरका लिखा हुआ है, या लेमन जूस लिखा हुआ है. आप विनेगर काट दें प्लीज. लेमन जूस इज अ बेटर ऑप्शन. 1 चम्मच लेमन जूस डालें और उसमें पहले बेबी कॉर्न डालें. 1 आध मिनट बेबी कॉर्न को उबालें और फिर ब्रोकली डाल के छोड़ दें, और फिर थोड़ी देर बाद छान लें. ब्रोकली को ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं, बस डाला और गैस बंद करी और पानी में छोड़ दें, अपने आप वो हो जाती है. ओके. अब अगर आपको जुकनी भी नहीं मिलती है
और स्नो पीस भी नहीं मिलते हैं, तो फिर आप ग्रीन कैप्सिकम जैसे ये रेड काटी है वैसी डालें और इस समय ही डाल दीजिए, क्योंकि उसे भी आपको ऐसे ही अनियन के साथ ही सॉटे करना होगा. Okay. Now you have yellow zucchini also, if you like. You can use that also. I just used different things so that I could show you all the vegetables. अब ये भी ज्यादा नहीं सॉटे करना, 1-2 मिनट. थोड़ा सा इन सब्जियों पे नमक डाल देते हैं, दिल स्वेट, और थोड़ी सी काली मिर्च. And now I'll add, except for the blanched vegetables, I'll add all the other vegetables. थोड़ी सी मुझे सब्जी ज्यादा लग रही है ये, क्योंकि हरी भी ले ली है, पीली भी ले ली है, तो थोड़ा सा हाथ रोक लेती हूँ. थोड़ा सा ऑयल भी कम लग रहा है, सब्जी ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा डाल दिया मैंने. ओके, नाउ इसको सॉटे करके एंड देन I'll add the blanched veggies. अब इसको कितनी देर सॉटे करना है, जितनी, देखो स्नो पीस जो हैं, they are, you can eat them like this. You don't need to blanch them. The only thing that you have to do is ऊपर से थोड़ा सा, जैसे ये है तो ऊपर से ये थोड़ा सा अगर निकलता है इसका धागा तो निकाल दीजिए दोनों साइड से, बस. अगर अच्छे हैं तो धागा होता भी नहीं है, पर निकाल दीजिए अगर है तो. और जुकनी अगर आपने बीच में से बीज निकाल दिया है तो उसको फिर ज्यादा सॉटे करने की जरूरत नहीं है. कितनी देर करना है विल डिपेंड ऑन हाउ थिकली यू हैव कट योर zucchini, but we don't want it very we like our vegetables crunchy, so we can just keep a check. You can always eat your vegetables and keep checking. It's perfect. I don't want it softer than this. So now I'll add my blanched veggies, my broccoli and my baby corn. Now this is done. Again, a little salt and pepper. जो बाद में सब्जियां डाली उसके लिए सॉल्ट एंड पेपर अगर शुरू में ही सारा डाल दो तो होता क्या है, जो बाद की सब्जियां, पहली वाली जो सब्जियां हैं वो सारा नमक ले लेती हैं और जो बाकी की सब्जियां होती हैं वो थोड़ी फीकी फीकी लगती हैं. सो इट्स बेटर टू ऐड सॉल्ट एंड पेपर इन स्टेजेस. बस. Now this is done. I'll switch it off and I'll show you how nice, colorful the whole thing is looking. And I'll add the tofu also to this and keep it aside. Just mix it up and keep it aside. Now, इसके बाद इसकी सॉस बनानी है हमने. तो अब सॉस में मैंने आपको कहा था कि इट इज स्वीट एंड स्पाइसी. तो स्पाइसी में आप देख रहे हैं इसमें लाल मिर्चें भी पड़ी हैं आधा टीस्पून, ऑयल भी पड़ा है और रेड चिली फ्लेक्स भी 2 टीस्पून हैं. और अब क्या क्या जाएगा इसके अंदर, इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ चिली, स्वीट चिली सॉस. आपकी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं. ये मैं डाल रही हूँ श्रीराचा. ये मैं डाल रही हूँ ओयस्टर. और ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस. सोया सॉस और ओयस्टर कम है, वो ज्यादा है. अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी मिले हुए हैं, थोड़ा सा ऑयल भी मिला हुआ है. और आपने अगर खाना सर्व नहीं करना है तो यहां तक काम करना है और यहां तक काम करना है, आपने आगे नहीं करना. अब इसमें थोड़े से आप, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़े से रेड चिली, ये रेड टोमेटोज, चेरी टोमेटोज डाल सकते, थोड़ा सा हरा प्याज ऊपर मिला सकते हैं. इसको ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, बस इसको मिला देती हूँ. गरम तो है ये, ऐसे तो ये हम बाद में भी डाल सकते हैं, पर होता क्या है कई बार दिमाग से निकल जाता है. सो इट्स अ गुड आइडिया टू कुक एवरीथिंग एंड देन ऐड.
Now for the chicken, this sauce that I have told you, make it 1.5 times. Cut 500 grams of boneless chicken thigh preferably, or chicken breast. I prefer the thigh, it's softer. Cut it into small cubes, bite-sized cubes, and ये 1.5 गुना सॉस बनाओगे 1.5 times, तो जो आधी सॉस है, मतलब half of this quantity जो एक्स्ट्रा बनाई है आपने, उसमें चिकन को मैरिनेट कर दो. पर चिकन को हमेशा इसमें मैरिनेट करने से पहले आप फर्स्ट मैरिनेट तो देंगे ही, जो लेमन जूस, सॉल्ट और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ चिकन को पहले मैरिनेट करना चाहिए. इट्स बेटर इफ यू मैरिनेट इट ओवरनाइट. तो अगर आप रात को मैरिनेट कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं सोचा हुआ है तो आप उसे आधा घंटा तो जरूर लेमन जूस लगाकर चिकन को रखें. उसके बाद धोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिकन को उठाओ तो थोड़ा सा आप देखोगे पानी नीचे छूट गया. वो लेमन जूस और नमक डालने से पानी, थोड़ा सा चिकन पानी छोड़ देता है. कुछ लेमन जूस होता है, कुछ पानी होता है. उसको उठा के एक बोल में जिसमें आपने जो एक्स्ट्रा सॉस बनाई है वो डालो, उसमें चिकन डालो और उसमें थोड़ी देर 15-20 मिनट फिर मैरिनेट कर दो. और फिर आप इसमें जिंजर गार्लिक और रेड चिली डालने के बाद मशरूम ना डालें, टोफू वाला स्टेप ना करें. बस जैसे ही आपने जिंजर गार्लिक और रेड चिली डाली है उसके बाद आप चिकन को सॉटे कर दें. चिकन जब आपका सॉटे करने से, मशरूम तो 2-3 मिनट में हो गया, चिकन आपको 3-4 मिनट सॉटे करेंगे, फिर हम ढकेंगे, 5-7 मिनट खा के देखेंगे चिकन पक गया है. फिर हम उसमें अनियन और रेड कैप्सिकम डालेंगे, थोड़ा सा सॉटे करेंगे और फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सब्जियां जो भी आप डालना चाहते हैं, थोड़ी सी सब्जियां डाल के, और आपकी गैस बंद और वो एक तरफ पड़ा है, बाकी की सॉस आपके पास पड़ी है. अब इसको हमने सर्व और अगर ये रेड चिलीज होल डालना चाहते हैं बीच में शक्ल के लिए तो डाल दीजिए, काटिए मत, और बारीक हम काट के डाल चुके हैं. अच्छा, अब इसमें हमने यूज करना है चावल. अब इसको हमने सर्व करना है नूडल्स के साथ नहीं, इसको सर्व करना है चावल के साथ. तो इसमें क्या करना है, नाउ बॉइल्ड राइस आपके पास है, और बॉइल्ड राइस में आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अगर आप देखें तो मैंने इसी में पैक करना है, इसलिए मैंने इसी में डाल के रखा है. व्हाइट सेसमी सीड्स हैं, रोस्ट टोस्टेड, थोड़ा सा सॉल्ट है क्योंकि मेरे प्लेन बॉइल्ड राइस है, और थोड़ा सा व्हाइट पेपर है. ये चीजें इसमें डाल दो. थोड़ा सा इसमें मैं हल्का सा सेसमी ऑयल, इसमें सेसमी ऑयल ही रखा हुआ है मैंने आज, तो सेसमी ऑयल मिला दीजिए और अपने राइस को मिक्स कर लीजिए. अगर आप माइक्रोवेव करने की सोच रहे हैं इसे गर्म करने के लिए, तो पानी का छींटा देके माइक्रोवेव करिए, नहीं तो ये बहुत ड्राई हो जाएंगे माइक्रोवेव में. बस थोड़े से सेसमी सीड्स अंदर मिला दीजिए, तो ये बन गया हमारा सेसमी राइस, नथिंग बट व्हाइट. एंड दिस सॉस टेस्ट बेटर विथ राइस देन नूडल्स. बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी सर्व करना चाहें. बस इसमें नमक मिल गया. अब इसको अच्छी तरह से हम गरम कर लेते हैं, और इन द मीनवाइल इसकी गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं हम. तो गार्निशिंग में हमें चाहिए ये स्प्रिंग अनियंस और लेमन वेजेस, थोड़ा सा चिली पाउडर. और ये मैंने क्यों रखा है, कोई भी बोल ले लीजिए और उसको आप ब्रश कर लीजिए. अच्छा, अब हमारा सर्विंग का टाइम आ गया है, तो अब हम चावल जब गरम करने लग रहे हो तो सब्जी अपनी गरम करोगे जो है, मैंने ऑन कर. इसमें मैं डालूंगी सॉस जो मैंने बना के रखी है, थोड़ा सा गरम हो जाए फिर डालती हूँ. तो मेरी सब, और ये स्प्रिंग अनियंस कैसे काटे हुए हैं ये देखिए, बड़े सुंदर लगते हैं ये कटे हुए. तो डायगनली आपने काटने हैं और बहुत टेढ़ा टेढ़ा करके काटना है. अभी आपको काटना बता देती हूँ. ओके, अब ये मैं इसके अंदर, ये गरम हो गया. आई एम एडिंग दिस, सो यू कैन हैव चिकन एंड वेजीज इन दिस, यू कैन हैव ओनली वेजीज एंड टोफू इन दिस, योर विश. एंड we'll just give it a quick boil. ये चावल गरम होके आ गया, ये इसके अंदर पैक कर दो चावल को. और अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे, जैसे कई बार क्या होता है, थोड़ा सा अगर गाढ़ा लग रहा है तो आप ज्यादा नहीं, अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ वाटर डाल सकते हैं.
just a tablespoon, ज़्यादा नहीं. That also depends how you like your firecracker sauce. ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन है. हाउ डू यू कट इट टू गेट दीज ब्यूटीफुल लुकिंग थिंग्स? एक तो इसे पानी में डाल दें तो बहुत स्टिफ हो जाता है. इसको बिल्कुल टेढ़ा काटिए आप, और बिल्कुल पतला काटिए, टेढ़ा और पतला. मैं इसको बंद कर रही हूँ. ये हो गया, इसमें बॉईल आ गया. Okay, so we have our spring onions which are ready. We have this lemon wedges which are ready, and our rice is also ready. Now this rice is nicely packed. So you take a plate like this. Now you would think कि इसको उठा लें हम. आपने इसको उठाना नहीं है. You have to just leave it there. अगर आप उठा दोगे तो गड़बड़ होगी. तो उठाइए मत इसको. और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपनी firecracker sauce. अगर हम ये उठा देते तो हमारा चावल पे नहीं गिर जाता सारा सॉस. तो इसलिए आपने इसको नहीं उठाना है. You have to leave it like this. बस, you don't need to fill it too much. And then just clean your plate. Don't bother to clean the box or the bowl that you put on top. Now carefully just lift it. So you have your nice heap of rice, and garnish your rice with some firecracker. So red chili powder, some lemon, and some nicely cut spring onion greens. So your first dish is ready to go. Now next we are doing tempura or the crispy veggies. Now I hope you all enjoyed seeing the firecracker. Chinese, Japanese, any Oriental cuisine, I would say the cooking process is very short because they don't bhuno the pyaz and tomato ka masala like us. They just add the pre-cooked sauces. So उसमें टाइम नहीं लगता. But of course तैयारी में बहुत टाइम लगता है. तो सारी चीजों की तैयारी करके रखिए और बस उसी समय सॉटे करिए और सॉस बना के रखिए. सब्जियां थोड़ी बहुत सॉटे कर लीजिए, जैसे आप टोफू, मशरूम्स कर सकते हो, जुकिनी कर सकते हो, ऐसी चीजें डाल दो. पर आई वुड से जैसे जो ब्लांच सब्जियां हैं उनको अलग ही पड़े रहने दीजिए. जब सर्व करना है तब मिला दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कुक्ड हैं. तो बस मिलानी होती हैं. जो हरा प्याज है, जो लाल आपके टमाटर हैं, इन्हें आप लास्ट में मिलाएं तो बेटर रहता है. और राइस में भी कोई खास काम नहीं है तो बहुत जल्दी हो जाता है. नाउ अब हम बना रहे हैं आपके टेम्पुरा. इसमें जो वेजिटेबल कटिंग है और जो ये पानी में भिगोने का काम है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये देखिए हरा प्याज है. ये मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ और इस कपड़े पे डालती चली जाती हूँ. ये जुकिनी है मेरी, पतली सी मैंने काटी हुई है. ये बैंगन है. अब बैंगन को ये अगर आप देखें तो पानी में भीगे हुए हैं. ठंडे पानी में मैंने इसे भिगो के रखा हुआ है. और ये हरे प्याज लंबे लंबे हैं. ये गाजर को मैंने लंबाई में काट के ऊपर से शक्ल अच्छी करने के लिए थोड़ा सा टिप निकाल दिया है. तो गाजर ऐसे टिप्स के साथ काट लीजिए. और क्या सब्जियां हैं, जैसे ये शिमला मिर्च है ऐसे करके, और इसे अगर हम दो में कर लेते हैं तो ऐसे. The idea is to have long strips like this. तो सारी चीजों को आपने पानी में डालना है, ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में. ये जैसे मैंने सुबह काट के फ्रिज में ठंडे पानी में रखे हुए हैं. अब बैंगन को सिर्फ आपने थोड़ा सा डीगॉर्ज करना है. तो मतलब नमक और लाल मिर्च लगाकर. और ये बैंगन कौन से हैं, ये लंबे वाले ऐसे बैंगन हैं जिनको लंबाई में आपने काटना है. और इन्हें आपने नमक और लाल मिर्च लगाकर थोड़ी देर छोड़ देना है. उसके बाद पैट ड्राई करके
इसी पानी में जो बाकी सब्जियों का पानी था उसी के साथ आप डाल देंगे। तो ये थोड़े से बीन्स भी हैं, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। ये हरा है, ये सारी सब्जियां जो हमने पानी में रखी हुई हैं, मैं देख रही हूँ उतनी लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए अभी। ये लाल शिमला मिर्च है, लाल बड़ी अच्छी लगती है, शक्ल बड़ी अच्छी आती है, तो लाल शिमला मिर्च ले लेते हैं। बीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई थिंक 4-5 बैंगन बहुत हैं। ओके, अब इनको आपने पैट ड्राई करना है, पानी से निकाल के अच्छी तरह से पोंछना है। ये सब काम जब शुरू करने लगते हैं तो तेल चढ़ा देते हैं, तो हमने गैस पे तेल चढ़ा दिया है। अब ये सब्जियों को मैं कपड़े से पोंछ लिया मैंने, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और जो बैटर मैं बनाऊंगी वो मैं सोडा वाटर से ही निकालूंगी। अब इन सब्जियों को बैटर बनाने के लिए मैं सोडा वाटर का इस्तेमाल करूंगी। नॉर्मली तो एग भी डालते हैं ये, अगर आप एग डाल रहे हैं तो बेकिंग पाउडर खास डालने की जरूरत नहीं है, पर अगर एग नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपको बेकिंग पाउडर डालना पड़ता है, नहीं तो वो सिर्फ थोड़ा सा मीठा सोडा हल्का सा डालते हैं। अच्छा, नाउ बिफोर यू, दिस इज प्लेन मैदा। I have written corn flour there, but I realized कि मैदा is a better option, so you can make मैदा और corn flour। तो मैंने मैदा ले लिया है इसमें corn flour की जगह, तो आप अगर करना चाहें तो corn flour कर सकते हैं। Now I have 1/4 cup of corn flour, 1/4 cup of rice flour, then I have half a teaspoon of salt, and I have half a teaspoon of baking powder। और इसको मैं बनाऊंगी थोड़े से सोडा वाटर से। और जो आपका बैटर है वो बहुत, इट शुड बी लाइक, आई वुड से लाइक हेवी क्रीम, क्रीम की तरह। बहुत पतला होगा तो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो सब्जियां नहीं नजर आएंगी, थोड़ी सी सब्जियां बीच में से नजर आनी चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप, अगर आप चाहें तो मैं नाप सकती हूँ, नहीं तो अंदाजे से डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, पर जो भी डालिए, चाहे पानी डालिए या सोडा डालिए, प्रेफरेबली सोडा। टेम्पुरा बैटर में भी सोडा डालना, पर गाढ़ा गाढ़ा। बस, दिस लुक्स फाइन टू मी। एक तल के देख लेंगे, अगर गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा सोडा और मिला देंगे, और पतला लगेगा तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर कुछ डाल देंगे। बस, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, इट्स लाइक क्रीम, सी, इट्स अ नाइस क्रीमी कंसिस्टेंसी। एंड बहुत ज्यादा विस्क करने की जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी अ लंपी बैटर। सो वी जस्ट लीव दिस हियर। ओके, नाउ how to check your oil. Now let's put a little batter. Now I've written in your recipe that if the batter comes halfway up, मतलब नीचे जाकर, पूरा नीचे नहीं जाता वो, थोड़ा सा ही नीचे जाकर फिर वो ऊपर आ जाता है एकदम से, तो बैटर ऐसा, आपका तेल इतना ही गर्म होना चाहिए कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा डालो तो वो एकदम से ऊपर आ जाए। कई बार होता है ना, नीचे जाके पहले बैठ जाता है और फिर ऊपर आता है, तो इसका मतलब आपका तेल ठंडा है। और कभी कभी एकदम से लाल हो जाता है तो वो ज्यादा गर्म है। अगर आपका तेल ठंडा होगा तो आपकी जो सब्जियां हैं बहुत ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी, और अगर आपका जो तेल ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी से लाल हो जाएंगी और सब्जियां पकेंगी नहीं। सो बी केयरफुल टू हैव योर ऑयल एट द राइट टेम्परेचर। यू कैन ऑलवेज फील योर ऑयल लाइक दिस, ऐसे गर्म लगना चाहिए। अच्छा, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द ऑयल, लेट्स स्टार्ट विद, तो हमने ये मैदा लिया है और हम इसको अच्छी तरह से ऐसे ले लेंगे। मैंने रेसिपी में कॉर्नफ्लावर लिखा है, तो आप प्लीज मैदा कर दें, तो आप उसमें मैदा लिख दें, मैदा जरा बेटर चढ़ता है। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा अपने वेजिटेबल्स पे फ्लावर लगा लेती हूँ ठीक से। तो जस्ट फ्लावर योर वेजिटेबल्स लाइक दिस।
nicely. ये गाजर. अच्छा, इसके साथ हम सर्व करेंगे लाइट सोया सॉस एंड वील सर्व अ मस्टर्ड मेयो विद इट. तो वो मस्टर्ड मेयोनीज का भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ ये डालकर. एक बात को और ध्यान रखें कि बहुत सारे आप अंदर एक साथ मत डालें. Now if you are a non-vegetarian, your prawns are a very good option for it. But when you do prawns, आप उसमें डीवेन तो आप अपने फिश मॉन्गर से करा ही लेंगे, और आप उसे जो उसमें कट्स डाल दीजिए ताकि आपका प्रॉन थोड़ा कर्ल ना करे. जो बेली साइड है उस पे थोड़े से कट्स दूर दूर डाल दीजिए ताकि आपका प्रॉन सीधा हो जाए. और फिर उसको भी आप ऐसे ही बैटर में फ्लावर में ड्रेज करके और फिर बैटर में उसे डालेंगे. I forgot to add the mayo. Now mayo is very optional, and let me add it. It gives a little creamier texture to the batter. So I'm adding a little mayo. I had kept the mayo, but mine se nikal gaya. Just a teaspoon of it. ज़्यादा नहीं डालना आपने. Why? You know, because we are not adding egg. When you add egg, the egg yolk does this work. When you're making it eggless, then the mayo is a good option, the substitute I would say for the egg. तो अगर egg डाल दोगे तो mayo की जरूरत नहीं है, और अगर egg नहीं डाल रहे हो तो मेयोनीज आप थोड़ी सी मिला दीजिए. अब हो गया है ये, और अब हम डालते हैं. एंड इट्स अ गुड आइडिया not to hold the vegetable, you know, with your hands. Just put it in this and using your tongs. अब ये ठीक नहीं है, तेल थोड़ा ठंडा है. we'll have to wait. ये बैटर मेरे को थोड़ा गाढ़ा लग रहा है. So I'll just make the batter a little thinner by adding a little more soda to it. अभी मैं जरा तेल गरम हो रहा है. चलो मस्टर्ड मेयोनीज बनाते हैं जब तक हम. कोई बात नहीं, जब तक हमारा तेल गरम होता है. नाउ मस्टर्ड मेयोनीज इसके साथ आप सर्व कर सकते हो. लाइट सोया सॉस सर्व कर सकते हो. मस्टर्ड मेयोनीज इज ऑल्सो अ गुड आइडिया. नाउ मेयोनीज एंड होल ग्रेन मस्टर्ड, a little oil, a little lemon juice. That's it. And a little salt to taste. ये वाला तो ठीक नहीं बनेगा क्योंकि हमने ठंडे तेल में, ठंडा हो गया सारा तेल, तो ये तो ठीक नहीं बनेगा, तो हम अभी और नहीं डालेंगे. एंड थोड़ी सी हनी भी मैंने इसमें डाल के रखी हुई थी, थोड़ी सी. आई थिंक आई जस्ट टेस्ट इट. थोड़ी सी हनी डालना है, ज्यादा नहीं. A wee bit of honey. And now whether you need a little water or not, थोड़ा सा oil डाल दीजिए. And whether you need water in it will depend on the texture of your mayonnaise. If you feel your mayonnaise is very thick, just add a little water. Okay. So now mustard mayo is ready. Look at the beautiful whole grains of the mustard. If you don't have the whole grain mustard, you can use the regular English mustard or anything, but the Japanese prefer the whole grain. They eat a very healthy diet. Okay. So now this is done. मैं बैटर थोड़ा सा पतला करती हूँ. ये देखिए, इसमें से बहुत अभी सब्जी नजर नहीं आ रही है. तो बैटर इज अ लिटिल थिक. आई टोल्ड यू द बैटर कैन बी एडजस्टेड आफ्टर फ्राइंग वन पीस. अभी इसमें निकाल देते हैं, तेल गरम होगा तब हम करेंगे ये बैटर को हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं. मेयोनीज भी डाल दी थी ना बाद में, उससे भी गाढ़ा हो गया होगा ना. मेयोनीज डालने से पहले मैंने चेक किया था. मेयोनीज डालने के बाद चेक नहीं किया ना, ठीक है, वो गाढ़ा हो गया था. I'll just make my help do it so that I can proceed further. It's just frying
जस्ट फॉलो द सिंपल टिप्स ऑफ फ्राइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक थोड़ा सा बैटर डाल के देख लो। ये मैंने ऐसे सब्जियों को कोट करके, आई एम गिविंग इट टू माय हेल्प टू डू इट, सब्जियों को ऐसे कोट कर दिया। बैटर थोड़ा सा पतला किया है मैंने, क्योंकि मेयोनीज मिलाने के बाद मैंने चेक नहीं किया था। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा एट ए टाइम, और ये जब वो तल लोगी तो ये ले लेना। नाउ हाउ टू प्लेस योर मेयोनीज, वील डू दिस। इसमें हमने टेम्पुरा लगाना है। I have to be careful, थोड़ा सा दूर। Now you can just put your mayonnaise on one side in a heap like this. This makes a very good spread for your sandwiches also. Dip a spoon in water like this, a rounded spoon, and just press to make a little hole. Dipping it again in water, wiping it clean, dipping it again in water, and then if you have these edamame, you get these frozen edamame in a packet. Agar aapko milta hai, we also have it on our site. You can buy it from us. You can just put a few edamame inside. If you want, you can put some oil also, but let's forget the oil. Let's make it healthier. Now take a cherry tomato, cut it into half like this, and just arrange here. So this is how you arrange your mayonnaise. Some edamame, and if you like edamame, you can also just saute them and put them on the sides also if you like. Or you can just leave them like that. Steamed भी खाते हैं. So these are kind of steamed only. ये softy होते हैं, तो आप ऐसे भी रख सकते हो. नमक भी इनके अंदर होता है, कोई जरूरत नहीं होती. Okay. Now this is also done. This is just simple light soya sauce. Nothing. Now for the noodles, I'll explain to you how to boil the noodles. You can just see the mayonnaise, see how the mayonnaise is placed, and beach mein I'm going to place the tempura here in the center. Once it's fried, abhi fried nahi hua hai, so I'll just hold on, huh? Okay. Now the tempura is nicely fried. Thoda sa ye extra bhi upar aa raha hai, wo acha lagta hai. It's very nice. See, it's the sound. You can see the sound, how crisp this is. And the soda water you were asking me, this is why the soda water is added. Now when you take these out, just dab them slightly with another tissue. And जैसे अगर आपकी प्लेट भरती चली जाती है, तो एक के ऊपर एक मत करो. इसके टिश्यू के बाद टिश्यू से निकाल के इन्हें रैक पे रख दो. आप ये जैसे रैक पे रखो, तो उससे क्या होता है, डैब टिश्यू पे निकालो, डैब करो टिश्यू पे. और ये जो थोड़ा सा जिसको आप बोलो, ये जो स्ट्रे हैं, ये they taste very nice when you top them on the noodles because they are really really crunchy. तो इसको भी निकाल के स्टोर कर लो. जैसे हम बूंदी नहीं रखते अपनी, ऐसे नूडल्स के ऊपर, सैलेड्स के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी आप इसको, जो स्ट्रेज हैं आपके, यूज कर सकते हो. ओके, तो हमारे ये टेम्पुरा अभी तल रहा है, पर आपको समझ आ गई है इसको ऐसे रखना है. Okay, next we'll do the noodles. Now we make a sauce of noodles, which is, now for the noodles we make a sauce which I've already made. Mixing करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ. इसमें सबसे ज्यादा important है Worcester sauce, and ये LP की sauce होती है, Lee and Perrins, which is the most popular noodles की sauce. And ये वूस्टर सॉस है, वूसेस्टरशायर है, पर वूस्टर भी बोलते हैं इसे. सो ये एक वूस्टर सॉस होती है. इसके अंदर थोड़ी सी, इसके अंदर टोमेटो केचप है. इसमें आपकी डार्क सोया सॉस है. देन आपकी इसमें थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस है. तो ये सारी सॉसेस आपकी इसके अंदर पड़ती हैं, और ये मैंने रेसिपी में आपको दी हुई है. तो वो सॉसेस आप मिक्स करके ऐसे जो क्वांटिटीज लिखी है,
वो मिक्स करके रख लीजिए। नूडल्स आपके कौन से हैं? ये सोबा नूडल्स हैं, ये यूज किए हैं। ये बकव्हीट नूडल्स होते हैं एंड इसमें बकव्हीट इज कुट्टू का आटा। तो कुट्टू का आटा इज हेल्दियर से सी इट सेज व्हीट फ्लावर एंड बकव्हीट फ्लावर, दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं। सिर्फ बकव्हीट से तो नहीं बन सकता, सो व्हीट एंड बकव्हीट, so they are, that is why a little brownish in color, and if you see them they are very thin like this, so they don't take long to cook। पानी उबालेंगे, जैसे आप नूडल्स उबालते हैं, थोड़ा सा और नूडल्स का मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। जैसे आप पानी उबालते हैं, थोड़ा खुला पतीले में थोड़ा खुला पानी डालिए और उसके बाद आपने उसमें नमक और तेल डालना है जैसे लिखा हुआ है, और नूडल्स डालकर ब्रेक नहीं करने हैं, जस्ट कीप स्लिपिंग। अगर बर्तन थोड़ा छोटा है, चौड़ाई कम है, जस्ट कीप स्लिपिंग, इट विल गो डाउन एंड वो उबाला आएगा। 3-1 मिनट में आप नूडल्स को अगर मुंह में डाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि 19-20 की कसर है, तब आपने गैस बंद कर देनी है। जब तक आप अपनी छन्नी लगाओगे और छानने की तैयारी करोगे, वो हो चुके होंगे, मतलब 1-8 मिनट और एंड तक मत उबालिए, उसको उतार दीजिए। उसके बाद उसे छान लीजिए। छानने के बाद उसे ठंडे पानी से निकाल के और फिर छन्नी में 5-7 मिनट पड़े रहने दीजिए ताकि ऑल द वाटर ड्रेन्स। अगर आप उसी समय उस पर तेल डाल देंगे तो तेल भी सारा निकल जाएगा, तो आपने तेल नहीं डालना है। नाउ नूडल्स को जब आप उबाल रहे हो, आज आपको जापानीज खाना तो हम सिखा ही रहे हैं, पर रोज का खाना भी आपको अच्छा आना चाहिए। सो आई जस्ट थॉट आई शो यू दिस बुक, Everyday Khana, your dal sabzi should also be very tasty. So this book will help you make tasty everyday meals for you. I'm doing a snacks class next, but there are many books on snacks. Like this is specially unfried and baked snack, and my next class on the 19th is of unfried healthy snacks. I have a few books on baking, which I would like to recommend. And Japanese आप कर रहे हैं तो I'm sure you're fond of international cuisine, तो ये Italian है, तो ये Italian book भी आप देख सकते हैं। And this is again international. For the non-vegetarians, these 2 books, इसमें चिकन के सब options दिए हुए हैं। Okay. Now before we go for the noodles का मैं बता चुकी हूँ आपको। इसको बॉईल करने का तरीका, छन्नी में 5 मिनट ठंडे पानी से निकाल के फिर छन्नी में डाल के छोड़ दें और फिर तेल लगा के इसको किसी बोल में ढक के रख दीजिए। अब ये लोग ऊपर जापानीज पिंक जिंजर खाते हैं। हाउ टू मेक दैट पिंक जिंजर? Now this is very interesting. You take a cup of water, okay, and here I have my ginger juliens, but I'm not going to add them right away. I'm going to add to this, I'm going to add my water में मैं थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ। आपके पास रेसिपीज हैं, 4 चम्मच है विनेगर का 1 कप में, और 1 बड़ा चम्मच चीनी का, 1 छोटा चम्मच नमक का, ये गया इसके अंदर। और अब पिंक कैसे रंग आएगा? पिंक हम जिंजर बोल रहे हैं, तो पिंक रंग आएगा हमारा इस बीटरूट से। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बीटरूट, जस्ट अ रॉ बीटरूट, कच्चा है। आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट इनटू स्लाइसेस एंड पुट इट इन दिस, and I'm going to boil this for a while till my liquid turns nice deep red. अच्छा कलर आ जाएगा, उतनी देर हम नूडल्स का काम करते हैं। ये देखिए फ्राइड अनियंस हैं, जैसे बिरयानी के लिए आप प्याज तलते हैं, आप फ्राइड अनियंस भी रख सकते हैं, पर अगर ये ना मन करे so you can use these fried onions। और ये कैसे फ्राई करने हैं आप लोग को पता ही होगा, चॉप करके तेल में डाल के, बस जब वो लाइट गोल्डन होते तो ये निकालने मेरे से थोड़े से ज्यादा हो गए। आज देखिए थोड़े काले मुझे खुद ही लग रहे हैं, तो निकालते निकालते थोड़ी सी कभी लापरवाही हो जाती है तो काले हो जाते हैं। काले मत करिए, थोड़े से इसे गोल्डन रखिए पर क्रिस्प करिए। ओके, सो वी हैव दिस। अभी इसका रंग नहीं आया ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा इसकी आंच बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ वी हैव दीज बीन स्प्राउट्स। आप घर में भी बना सकते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग घर में बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये सड़ जाते हैं जब तक ये इस साइज के होते हैं। तो दे नीड अ वेरी कंट्रोल्ड टेम्परेचर, तो अगर हो तो डाल दीजिए। दे हैव अ वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ, तो बाजार से अगर खरीदते हैं तो 1 आध दिन में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छी तरह धो के मूंग बीन स्प्राउट्स हैं।
ये एक चीज और है इसके अंदर, शिटाके मशरूम्स। ये ऐसे होते हैं शिटाके मशरूम्स, ये हमारी साइट से भी आप ले सकते हैं। और ये कैसे करने हैं, ऐसे काटने हैं, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि शिटाके होते कैसे हैं। शिटाके होते ऐसे हैं, सूखे मशरूम्स होते हैं ये। इनमें जो इनकी जो ये डंडी है ये एडिबल नहीं होती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये डंडी इसकी मैं हटा दूंगी और फिर काटूंगी, अभी काटना आपको बताऊंगी मैं। तो इनको क्या करना होता है, आपने अच्छी तरह से पानी में पहले धो लीजिए और फिर इन्हें पानी में 3-4 मिनट उबाल दीजिए। उबाल के छोड़ दीजिए थोड़ी देर। जब वो नरम हो जाए तो उसके पतले पतले स्ट्रिप्स काटिए। स्ट्रिप काटने से पहले ये डंडी इज नॉट एडिबल, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हम हटा देंगे। कुछ काले सफेद तिल है, वो मेरे पास है। ये लहसुन है, इसमें जिंजर नहीं साथ में हम शुरू में डालेंगे क्योंकि पिंक जिंजर हम डाल रहे हैं। जो सॉस बनाई थी उसमें हमने जिंजर भी डाला था, पर इसमें हम जिंजर सिर्फ टॉपिंग में डालेंगे। तो ये सिर्फ 2 चम्मच लहसुन है। और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं सारे देख के आपको बताती हूँ। ये शिटाके मैंने दिखा दिया आपको और इसको हम हटा देते हैं। अब कुछ इसकी सब्जियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इसमें मैंने कैबेज डाली है। दिस इज अ नापा कैबेज। दिस कैबेज इज समवेयर बिटवीन एन आइसबर्ग एंड पत्ता गोभी. It's not as hard as पत्ता गोभी and it's not so soft as a iceberg. मतलब इतनी जल्दी भी नहीं ये घुल जाती आइसबर्ग की तरह, मतलब विल्ट हो जाती। तो इसको आपने नॉर्मली जब हम चाइनीज नूडल्स बनाते हैं तो हम पतले पतले पत्ता गोभी के स्ट्रिप्स काटते हैं। तो अगर पत्ता गोभी यूज करें इसकी जगह तो उसी तरह काटिए। पर अगर इसको यूज करते हैं जो आपकी आइसबर्ग और कैबेज के बीच में है, जिसको हम चाइनीज कैबेज या नापा कैबेज कहते हैं, इसके आप डाइसेस करिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये बॉक चॉय है। बॉक चॉय की अच्छी तरह से डंडी धोइए। इसका जो नीचे का हिस्सा है इसको विड्थ वाइज काटेंगे और ऊपर की पत्तियों को हम श्रेड करेंगे। अभी सारी सब्जी कटी हुई भी दिखाऊंगी, बाकी सब्जियां तो आपको समझ आ ही जाएंगी। ओके, अब ये अच्छा लाल रंग हो गया है और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये मेरे जिंजर। और ये जिंजर को आप स्टोर भी कर सकते हैं, आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बीटरूट के स्लाइसेस भी आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पर नूडल्स पे नहीं डालते हम बीटरूट, पर आप घर में यूज कर सकते हैं। सो वी जस्ट लीव दिस इन दिस फॉर अ व्हाइल ताकि वो उसका कलर अच्छा हो जाए। अब हम सब्जियों पे आ जाते हैं। सब्जियों में आप देखिए ये हमने काटा हुआ है बीन्स, ये बॉक चॉय की डंडियां ऐसे आड़ी आड़ी आड़ी। और ये हमने पत्ते काटे, बहुत फाइन नहीं है, आप देख रहे हैं थोड़े मोटे मोटे हैं। प्याज हाफ रिंग्स आप लोग को पता ही है। गाजर के जूलियंस आपको पता ही है। और लाल शिमला मिर्च भी आपको समझ आ जाएगी जैसे हम डालते हैं। अब नीचे मैंने रखी है इसके पत्ता गोभी। ये रही जो हमारी पत्ता गोभी नहीं, चाइनीज कैबेज। ये देखिए मोटी मोटी है, बारीक नहीं है, जो लाइट कलर की है। तो ये नीचे इसके अंदर है। अब जो हम नूडल्स बनाएंगे, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो शिमला मिर्ची हो, कुछ भी हो, ये सब सारी चीजें हमने एक साथ डालनी है। तो आइडिया क्या करना है इसमें, एक तो सॉसेज मिला लेनी है, दूसरा इसके अंदर गार्लिक पेस्ट में हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे। और ये जो गार्लिक पेस्ट है ये हम अपनी सब्जियों में मिला देंगे। तो हमने अलग अलग सब्जियां नहीं डालनी। वी वांट आवर सब्जीज टू बी वेरी क्रंची। और हमने इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। एंड इट्स अ गुड आइडिया कि बड़ा सा बोल ले लो और उसको अच्छी तरह से ऐसे टॉस कर लो। तो किसमें टॉस कर रही हूं मैं, सिर्फ गार्लिक पेस्ट एंड ऑयल। चॉप्ड गार्लिक अलग है, ये गार्लिक पेस्ट है। तो गार्लिक पेस्ट बनाते समय थोड़ा सा पानी मत डालिए, थोड़ा सा ऑयल ही डालिए। और ये देखिए नीचे से अब पत्ता गोभी आ गई है इसके। पत्ता गोभी मैं बार बार कह देती हूँ, ये चाइनीज कैबेज है, नापा कैबेज है। तो इसको थोड़ा सा आप चॉप कर लीजिए ऐसे छोटे पीसेस में, या जो भी करिए, लंबा भी करिए, मतलब चौड़ा रखिए, बहुत बारीक नहीं काटना है आपने इसे। ऐसे ही बॉक चॉय को भी बहुत बारीक नहीं काटना, बारीक सिर्फ आपने गाजर काटनी है और कुछ नहीं।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए ताकि जो गार्लिक पेस्ट है वो अच्छी तरह से इसमें लग जाए। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नूडल्स उबले हुए हैं और सब चीज तैयार है। ये प्याज खोल देती हूँ मैं। Now our tempura vegetables have been done very nicely. Okay, I'll put the noodles aside and I'll now do the plating of the tempura first. हमारा आधे से ज्यादा काम तो किया हुआ है। ये देखिए आपका सबसे नीचे आप बड़ी अच्छी क्रिस्प फ्राई हुए हैं। ये जो मोटे मोटे हैं ये थोड़े से मैं नीचे रख देती हूँ। And then now just keep placing them like this, so in a heap. All things together. Bas, this should be good. So now our tempura is ready to be served. So this is how you do it. So now this is how you serve it. See, now it's not very oily because we pat dried it and then put it on the tray. Okay, now we'll start with the noodles. तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालती हूँ. Whenever you're doing noodles, it's a good idea to put your oil from the sides. That's how you season your kadhai. Side se dalo. Now season your kadhai like that. And now I had told you I'll show you how to do the shiitake. Remove your stem nicely. I'm going to discard this and then cut this into thin pieces. Now here the people who are non-vegetarian will cut their boneless chicken breast or thigh like this. So you have your shiitake or chicken, whatever you feel like. Now my oil is hot and tongs bhi lena iske liye, huh? I'll put the garlic first, generous amount. Remember not to burn your garlic because when you're putting the second ingredient in it, like we put the shiitake mushrooms, so the garlic still keeps getting done. तो वो जल जाता है फिर. ये आपकी जब खुशबू आने लगती है लहसुन की, तो it's time to add the next ingredient. And our next ingredient is the shiitake mushrooms, which have been soaked, nicely scrubbed to remove all the grit, and then sliced thinly after removing the cap. Or chicken breast, 2 chicken breasts, which have been marinated with lemon juice, salt, and a little ginger garlic if you like, and then for about at least 30 minutes or overnight, and then sliced thinly. So now we have this. We have our vegetables all tossed together with the garlic paste. We have our boiled noodles ready. And the final is the sprouts, which we'll add. And we have our sauces mixed together. And this is our pink ginger. Now what you need to do is just strain it through a tea strainer. I'll just strain it through a tea strainer so that I don't want the liquid. इसमें से मैं बीटरूट निकाल लेती हूँ और ये मैं अपने खाने के साथ मजे से खा लूंगी. बहुत टेस्टी लगते हैं pickled beet. Now look at the lovely ginger I have. So this is the pink ginger we have. And this is the extra liquid. Now if you want to store it with the liquid in a bottle in the refrigerator.
मशरूम्स को थोड़ा सा 3-4 मिनट करना, और ऐसे ही चिकन को भी 3-4 मिनट करोगे। अगर थोड़ा सा मोटा चिकन काटा है, देखो ये तो पका हुआ है, तो कुक्ड है, मतलब काइंड ऑफ जब आप इसको पानी में उबाल लेते हो तो काइंड ऑफ कुक्ड ही हो जाता है। अगर आपको ये लगे अनकुक्ड, चिकन अनकुक्ड लगे थोड़ा सा 3-4 मिनट के बाद, तो उस पर ढक्कन लगा के उसको पूरा पका लेना है आपने, फिर आगे बढ़ना है। आपने आगे नहीं बढ़ना जब तक आप उसे पूरा नहीं पकाओगे। ये ऑलमोस्ट डन दो, एंड बस ये हो गए हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट पेपर डाल देते हैं। आपको मैंने बताया है थोड़ा सा सॉल्ट पेपर हमेशा स्टेजेस में डाल दो तो अच्छा रहता है। अब इसको साइड पे शिफ्ट यहीं रख दो, शिफ्ट करके इसमें मैं ये सारी सब्जियां अपनी डाल रही हूँ। बस, आई थिंक दिस शुड बी गुड। The kadhai can't hold more than this, so I won't add. Now, even the onions have gone. So normally what we do is we add the onions first, then we add the capsicum, and then we add this. तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले सब्जी आपने डाली होती है वो आपकी बहुत ओवर कुक हो जाती है। It's a good idea not to touch the sabzis too much. With a spoon, a tong works better. सब्जियों को ज्यादा ना करिए। Keep them nice and crunchy. A little salt, pepper, and these noodles are moist, so that is why you don't, after adding the sauce, you don't cook them too much. The sauce is added towards the end. A little salt and pepper. Mix your noodles with the salt and pepper, and now sorry, the vegetables, and now it's time to add the noodles. See, the vegetables are all crunchy because we've added them all together. Only the shiitake mushrooms or the chicken needs to be added first. Now, before you add the noodles, it's a good idea to shift your vegetables to the side and then add your noodles. See how nice they are. बिल्कुल absolutely बिल्कुल जुड़ते नहीं है, और ये buckwheat के हैं, so they are healthier. I think this should be good enough because मैंने थोड़ी सब्जियां भी कम डाली थी. My wok can't take more than this. So see the size of your wok and then add. Now I'm going to add the sauce mix and we are done. Sauce mix डाल के ज्यादा कुछ नहीं करना है. Just give it a nice mix. The vegetables look nice and crunchy. हाथ चिकने हो गए हैं थोड़े से. बस. The noodles are done. And if you like, if you have these, just add the bean sprouts. Bean sprouts should not be cooked at all. They become very limp. They are eaten for their crunch. So it's a good idea to just add them towards the end. The taste is perfect. The Worcester sauce has a nice khatta meetha taste. It's a date and tamarind sauce, and the tamarind gives the nice taste. Now let's do the plating of our noodles. I think I'll just put it here. So we have our noodles here.
We have these beautiful pink ginger. So I'm just going to top it with the pink ginger. You don't have to use all of it. You can put this, the fried onion, और थोड़ा सा ये टेम्पुरा का अगर ऐसे क्रंचीज हैं तो वो भी डाल दो. And we have these spring onions also. And then of course the black and white sesame seeds. See, I put the ginger in the center, then I top them with the green onion. I have a row of fried onion later, and then lower bottom I'm sprinkling the sesame. So now this makes a complete meal by itself. Just clean the platter. Now our noodles are ready to go.